خبر دیں گے آپ کو، سندھ ہائی کورٹ نے سانحہ ملیر ہال میں ملوث ملزم ڈرائیور کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ مزید بتائیں گے اصغر عمر۔ جی اصغر۔ 24 مارچ 2025 کو ماہ رمضان میں شام کے وقت ایک حادثہ پیش آیا تھا کہ مخالف سمت سے آنے والے ایک ٹینکر نے اپنی درمیان کے آئی لائن توڑتے ہوئے دوسری سائیڈ پر کی ٹریفک پر چڑھ گیا تھا، جس کے نتیجے میں شوہر قیوم اور ان کی بیوی زینب انتقال کر گئی تھی، اور جو کیونکہ زینب حاملہ تھی تو ان کا بچہ بھی سڑک پر گرا اور وہ دم توڑ گیا تھا۔ ان تین افراد کے حادثے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا رحیم بادشاہ کو، جو اس کا ٹینکر کا ڈرائیور تھا، لیکن آج عدالت نے اس کی 10 لاکھ روپے کی ضمانت منظور کر لی ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی اور مقدمے میں ملوث نہ ہو تو اس کو رہا کر دیا جائے۔ جی اصغر عمر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ میئر کراچی کے حمایت یافتہ 32 پی ٹی آئی ارکان نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں فیض اللہ خان سے۔ جی فیض اللہ۔ میئر کراچی کی حمایت کی تھی تحریک انصاف کے 32 اراکین نے، اور تحریک انصاف کراچی قیادت اور تنظیم نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے خط میئر کراچی کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کراچی کے جنرل سیکریٹری ارسلان خالد نے مرتضی وہاب کو یہ خط بھیجا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ 32 منحرف اراکین کی بنیادی رکنیت ختم کی جا چکی ہے، اور ان اراکین میں جو منحرف ہیں ان کے نام شامل ہیں، اور کہا گیا ہے کہ ان 32 ارکان سے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکاری خطوں، کتابت اور عوامی حلقوں میں جانے والے ان 32 ارکان کو پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے، اور منحرف جو اراکین ہیں سٹی کونسل میں ان کو آزاد ممبر سمجھا جائے، اور پی ٹی آئی نے ہر قسم کی غلط فہمی سے محفوظ رہنے کے لیے باقاعدہ طور پر میئر کراچی کو یہ خط ارسال کیا ہے تاکہ انہیں پی ٹی آئی سے نہ جوڑا جائے۔ جی فیض اللہ خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ چیپٹر کو وہ ہیڈ کرتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات وہ وہاں پر پہلے آپ کی اطلاع کے لیے وہ قمر زمان قاہر صاحب نہیں ہیڈ کرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قمر زمان قاہر صاحب جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان پر آپ یہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن ادھی فریال پر آپ نے بات کی ہے۔ یہ ملاقات وہاں پہ وہیں پہ مظفر آباد میں ہوتی ہے۔ اگلی بات سنیں، یہ ان کی پارلیمانی پارٹی جو موجود ہو چکی ہے، بن چکی ہے، جو لوگ شامل ہو چکے ہیں، ان کو بلایا گیا کہ اب آپ میں سے لیڈر کس کو بنانا ہے۔ یہ ان پرنسپل ڈیسیجن ہو چکا ہے، 27 کا نمبر وہ پورا کر کے دکھا چکے ہیں۔ نہیں اب تو 30 سے پلس ہو گیا نمبر، ان کے پاس 27 کا نمبر موجود ہے۔ ان کو نہ مسلم لیگ نواز کی ضرورت ہے نہ کسی اور جماعت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور طالبان وفود کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی غیر سنجیدگی اور غیر لچکدار رویے کے باعث مذاکرات میں تعطل برقرار رہا۔ میزبان اور ثالثوں کی جانب سے مزید مذاکرات جاری رکھنے کا عندیہ دیا گیا۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہم اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اظہر بتائیے گا۔ دیکھیے جی، یہ مذاکرات 3 دن سے جاری تھے اور تقریباً 35 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے، اور پاکستان اپنا بھرپور موقف جو ہے ان مذاکرات میں پیش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، اور افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے خفیہ ٹھکانے ہیں، خفیہ ایسے مقامات ہیں جہاں سے دہشت گرد پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں۔ ٹھوس شواہد پیش کیے گئے، اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا واضح طور پر اصولی موقف رکھا کہ پاکستان کسی بھی طور پر اپنے ملک میں دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا۔ مذاکرات کا تیسرا دور بھی تقریباً 13 گھنٹے تک جاری رہا۔ دوست ممالک نے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی آخری کوشش جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ بٹھایا جائے، لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مزید آگے بڑھنا مشکل ہے، کیونکہ مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے طالبان وفد سے عملی اقدامات اٹھانے کے لیے تحریری ضمانت کا مطالبہ کیا ہے، اور پاکستان واضح کہہ رہا ہے کہ جب تک تحریری ضمانت نہیں ہوتی اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائیوں کی جو تحریری یقین دہانی ہے اس سے وہ گریزاں ہیں، وہ گریز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنا واضح موقف دیا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو اگر اس نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے ٹھکانے پر جا کر جواب دیا جائے گا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان نے یہ بھی واضح موقف اختیار کیا ہے کہ دہشت گردی ہوئی تو اس کا مناسب انداز میں جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ان مذاکرات میں واضح کرتا آیا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پاکستان نے جو منطقی اور مدلل مطالبات پیش کیے ہیں وہ جائز ہیں،
इस हवाले से इन मुज़ाकरात में वाज़ेह तौर पर यह भी कहा गया कि अफगान तालिबान का जो वफद है और मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मेज़बान जो ममालिक हैं वो भी ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जितनी भी मुतालबात हैं वो माकूल और जायज़ भी हैं। इस हवाले से ये भी दिलचस्प तौर पर सूरत हाल सामने है कि अफगान तालिबान का वफद खुद भी ये समझता है कि उन मुतालबात को मानना दुरुस्त है, लेकिन अफगान तालिबान का वफद बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ते में रहा और उनके अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ता रहा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी वफद ने बार बार ये नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है ताकि खित्ते में अमन कायम हो। मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफद को यही बात समझाई कि पाकिस्तान का एक असूली और जायज़ मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी को रोकना चाहिए और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़राए ने यह बताया है कि काबुल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब जो है वो नहीं मिला, जिससे ये तत्तुल पैदा हुआ है और यूँ लगता है कि काबुल में कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं, किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी और बेनतीजा मुज़ाकरात जो है वो इख्तिताम पजीर हुए हैं। मेज़बान जो है और जो सालिस का किरदार अदा करते हैं ममालिक, उनकी पूरी कोशिश रही है और वो अब भी कोशिश है कि किसी अंदाज से किसी तरीके से। ठीक है अजहर फारूक, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया एयरवाई को अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान और तालिबान वफूद के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात बगैर नतीजा खत्म हो गए। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की गैर संजीदगी और गैर लचकदार रवैये के बाइस ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। आपका क्या इनिशियल रिस्पॉन्स इसके ऊपर? जी हाँ, देखें बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का तो दो टोक मौक़िफ़ था और पाकिस्तान जिस स्टांस पे बात की थी उससे पे डटा रहा है। पाकिस्तान देखें, अगर अफगानिस्तान तालिबान रजीम समझते हैं कि वहाँ पे कोई प्रेजेंस नहीं है तो फिर तो इनको मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये देखें कि जो इनको डिक्टेशन आ रही है काबुल से भी आ रही है, कहीं और से भी आ रही है, दैट्स वाई वो सिंसियर नहीं है। और जिस तरीके से वो इसमें पेचीदगियां पैदा उन्होंने की हैं तो उससे यही लगता है कि वो चाहते हैं कि ये जो प्रॉक्सीज हैं, जो फितना व फारिश है, फितना व हिंदुस्तान है, उनको इस्तेमाल किया जाए अगेंस्ट पाकिस्तान अपने हैंडलर्स के लिहाज पर। देखें अफगानिस्तान खुद एक प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और जिसका वाज़ेह एविडेंस रिसेंट उनके फॉरेन मिनिस्टर का विजिट था जो 6 दिन वहां लगा के आए थे और जो अटैक उसके बाद में तो इंडियन इंस्टिगेटेड अटैक थे। सो पाकिस्तान में देखें क्लैरिटी है हमारे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। जब हम उसकी हम बात करते हैं, पाकिस्तान के वन पॉइंट था दैट वाज द सेफ हेवंस फॉर द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, और जिसमें फितना और फारिश है, फितना और हिंदुस्तान भी है और जिनका टारगेट पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक दिन 2 बजे तक इस्तीफ़ा दे दें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पैगाम। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास 36 मेंबरान की हिमायत है। 2 बजे के बाद तहरीक अदम एतमाद फाइनल होगा। आपको बता रहे हैं 2 बजे के बाद तहरीक अदम एतमाद फाइल होगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक दिन 2 बजे तक इस्तीफ़ा दे दें। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पैगाम। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास 36 मेंबरान की हिमायत है। 2 बजे के बाद तहरीक अदम एतमाद फाइल होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को घर भेजेंगी। नई हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, नून लीग ऑपोजिशन में बैठेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से मुशावरत के बाद दोनों जमातों के रहनुमाओं ने बताया तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त वज़ीर आज़म की मुशावरत से तय किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल सियासी राबता कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। कमेटी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के फार्मूले पर एतमाद में लेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर की जानिब से अमली हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। सियासी राबता कमेटी आज़ाद कश्मीर की क़यादत से तजावीज़ हासिल करेगी। इजलास में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक हैं। नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की क़यादत कर रहे हैं। मुश्ताक मिन्हास, तारिक फ़ारूक, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी समेत सीनियर क़यादत की शिरकत भी इस इजलास में हुई है। सऊदी वली अहद से मुलाकात 22 से फ़ख्र थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2 तरफ़ा खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे।
वफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए फ्लड लेवी नाफिज करने की तैयारियां शुरू कर दी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक फ्लड लेवी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज होने का इम्कान है। IMF भी फ्लड लेवी नाफिज करने पर जोर दे रहा है। फ्लड लेवी इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर नाफिज होने का इम्कान है। पाकिस्तान सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ कर्ज के बजाय मकामी फंड से करने की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए ताहाल बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील नहीं की। हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए वफाक और सूबे फंड्स फराहम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत हुई। मजीद तफसील जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन। जी देखिए, 9 मई और दीगर 5 केसेस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समाअत हुई है। अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI की गिरफ्तारी रोकने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने 25 नवंबर तक मुतलका मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी रोकते हुए जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने अहकाम जारी किए। अडयाला जेल हुकाम ने शोकाज नोटिस का जवाब न दिया। अदालत ने जमानत की दरखास्तों पर तोसी करते हुए मजीद समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। हुसैन अहमद चौधरी अपडेट करे थे, शुक्रिया। PTI का मेयर कराची की हिमायत याफ्ता सिटी काउंसिल के 32 PTI अरकान से इजहार लाताल्लुकी। PTI कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान खालिद ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है 32 मुनहरिफ अरकान की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की जा चुकी है। इन अरकान का PTI का से कोई ताल्लुक नहीं। अवामी हलकों में इन 32 अरकान का ताल्लुक PTI से ना जोड़ा जाए। मुनहरिफ अरकान सिटी काउंसिल को आज़ाद मेंबर समझा जाए। कराची में सिर्फ 6 घंटे में 1 करोड़ रुपए के चालान कर दिए गए। DIG ट्रैफिक कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2500 चालान किए गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से जो इस वक्त DIG ट्रैफिक के साथ मौजूद हैं। जी नज़ीर। कायद में आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक चालानिंग सिस्टम का आगाज कर ही दिया गया। कहीं पर सड़क नहीं है, कहीं पर लेन नहीं है, तो कहीं पर साइन बोर्ड्स नहीं है कि स्पीड कम करनी है, पार्किंग है, नो पार्किंग है। तो DIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद है। इस अहम इशू पर हमसे बात करेंगे। देखें, ये तो ऑब्वियस है कि जहाँ पर अगर आपका सिग्नल काम नहीं कर रहा या जहाँ पर लेन मार्किंग नहीं है, जहाँ पर आपकी स्टॉप लाइन या ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो वहाँ पर ये सिस्टम जो है हम एक्टिव नहीं कर रहे हैं। सीट बेल्ट, मोबाइल का यूज़, हेलमेट, वो तो आपको हर जगह करना है। बड़ी गाड़ियाँ जिसको हम HTV कहते हैं, उनकी लिमिट है 30 किलोमीटर फ़ी घंटा। जो छोटी गाड़ियाँ, उसमें तमाम गाड़ियाँ शामिल हैं, उनकी अपर लिमिट है 60 किलोमीटर फ़ी घंटा। पहले ही 6-7 घंटों में तकरीबन 2500 के करीब चालान जो हैं वो इशू हुए हैं। ये 10 मिलियंस के अराउंड होगी। लेकिन अल्टीमेटली देखें, ये सिटीजन्स की जिम्मेदारी का सबूत जब देंगे तो ये सिस्टम तभी कामयाब होगा। बिल्कुल, देखें, ये अहम बात है कि ये सिस्टम उसी वक्त कामयाब होगा जब लोग जिम्मेदाराना ड्राइविंग करेंगे और कवानीन पर अमल दरामद करें और अपनी जेब को हल्का होने से बचाएं। जी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं पूरे कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। चालान से डिसिप्लिन आएगा। इस वक्त 10,000 कैमरे नस्ब हैं। 14 दिन में चालान के साथ माफ़ीनामा जमा कराने पर 50% रियायत मिलेगी, नहीं तो दुगना जुर्माना भरना होगा। पास जो कैमराज हैं वो तकरीबन 10,000 के करीब हैं। ये नाइट विजन कैमराज हैं। एयरपोर्ट से लेकर टावर तक बिल्कुल जदीद कैमराज लगे हुए हैं। साउथ के एरिया में भी नाइट विजन जदीद कैमराज लगवा दिए हैं। पूरे कराची में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ई चालान सिस्टम से कम डिसिप्लिन आएगा। अगर 14 डेज में कोई चालान भरता है और वो कहता है कि वाकई मुझसे गलती हुई है, तो उसको हम 50% कंसेशन भी मिलेगी। और अगर वो 14 डेज तक नहीं देता है तो फिर डबल चालान देना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर कहते हैं सिंध हुकूमत सड़कें बनाने को तैयार नहीं, लेकिन जुर्माना बैनुल अक़वामी मयार का लगा रही है। पंजाब में यही जुर्माना 10 गुना कम है। कराची में हैवी ट्रैफिक आवाम के लिए मौत का परवाना बन गई है, लेकिन सिंध हुकूमत मामलात सुधारने को तैयार नहीं। चालान का जो निजाम कायम किया गया है उसके जरिए 6 घंटों में 1.25 करोड़ रुपए के चालान किए गए हैं। सड़कें देने के लिए तैयार नहीं है। जुर्माने आलमी मेयार के करेंगे और सड़कें कच्चे के इलाके से भी बदतर सड़कें हैं। सिंध गवर्नमेंट के जुर्मानों की ये भारी भरकम रकम और पंजाब के अंदर यही जुर्माने 10 गुना कम है।
ये ऐसा फर्क क्यों है? ये पूरा एक लूट मार का धंधा है। आप लोगों को अवेयरनेस तो दें, आप शहर की सड़कों की हालत तो बेहतर करें, उसके बाद आप ई चालान करें, कोई इतराज नहीं होगा। ट्रॉलर, टैंकर, डंपर, बसें, ये सारी चीजें लोगों के लिए मौत का परवाना बन गई हैं। आप इन मामलात को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, हादसात कम नहीं हो रहे, लेकिन ई चालान जरूर करेंगे। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आप इस पूरे सिस्टम का सरनो जायजा लें। सिंध हाई कोर्ट ने सानह मलीर हॉल्ट में मुलव्वस मुलजिम ड्राइवर की दरख्वास्त जमानत 10 लाख के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। 24 मार्च 2025 को टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी और नौजायदा बच्चा जाँ बहक हुए थे। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हुआ। तीसरे दिन मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे। लईकुर रहमान हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। लईक बताइएगा। जी साईं, तीसरे दिन इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान तीसरा राउंड हुआ, 18 घंटे तक जारी रहा। इससे पहले 2 रोज में भी, पहले और दूसरे रोज भी कई घंटे तक मुज़ाकरात हुए। तीसरा रोज जो 18 घंटों के दौरान अफगान तालिबान के वक्त की तरफ से बार बार पाकिस्तान के इस मुतालबे पर कि ख्वारिज और दहशतगर्दों के खिलाफ मुसद्दका और यकीनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए, उनको मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक किया गया। लेकिन ये देखा गया कि मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वक्त ने इस मरकजी मसले को तस्लीम तो किया, लेकिन जब भी वो काबुल से रब्ता करते तो उनको इस हवाले से जो हदायत मिलती, उसके बाद तालिबान के वक्त का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। और ये भी देखा गया कि मुज़ाकरात के दौरान काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और गैर हकीकी मशवरे बातचीत के बेनतीजा रहने के जिम्मेदार रहे हैं। अभी तक जो भी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके या नतीजा खेज नहीं हो सके, उसमें बुनियादी वजह काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और गैर हकीकी मशवरे हैं। ताहम पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुतब्बराना और संजीदा तरीके से अब भी इन पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं और कोशिशें की जा रही हैं। एक आखिरी कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से इस मसले पर कोई पेशरफ्त हो सके, लेकिन देखा जा रहा है कि तालिबान की हरदर्मी किसी तरह इस मामले को मंतक और बातचीत से हल करने की तरफ नहीं ले जा रही और एक आखिरी दौर की जानिब अभी बढ़ा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात का जो इस्तांबुल में गुज़िश्ता 3 रोज सिलसिला रहा और आज चौथे रोज भी एक आखिरी कोशिश की जा रही है, उसको नतीजा खेज बनाया जा सके। मगर साइन जो देखने में आया है कि तालिबान वक्त की जानिब से बार बार जब पाकिस्तान और साजिशों की तरफ से मुतालबात जो सामने आए हैं कि एक अमली और हकीकी नौयत के इक़दामात के बारे में तहरीरी यकीन दहानी कराई जाए, तो वो उनकी तरफ से नहीं दी जा रही, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि टीटीपी और दीगर जो ख्वारिज हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से, और हर मुमकिन तौर पर इस मुज़ाकरात को गैर मंतकी और गैर संजीदा जो मशावरत और तजावीज़ दी जा रही है उससे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है लाइक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने एवा न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर कमर साहब, कल हमने देखा कि अफगान तालिबान रजीम और पाकिस्तान के बीच में मुज़ाकरात का दौर हुआ। 13 घंटे तवील दौर था, बगैर नतीजा ख़त्म हुआ। आज का दौर 18 घंटे तवील था। मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान जो वफ़द था वो पाकिस्तान के ख़वारिज, TTP और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ मुसद्दका और यकीनी कार्रवाई के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तफाक करने से गुरेज कर रहा था। तहरीरी जो मुआहिदा था उससे गुरेज कर रहे थे, कतरा रहे थे। व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अमन है, और अगर अमन हासिल करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मेज़बान ममालिक तुर्की और कतर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि अमन जो है उसको मौका दिया जाए, और अब सारी की सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान के ऊपर है कि क्या वो दहशतगर्द जमातों को अहमियत देना चाहते हैं या आलम इस्लाम के इन तमाम ममालिक को अहमियत देना चाहते हैं जो अफगानिस्तान को एक नया मौका देना चाहते हैं कि वो बाकी ममालिक के साथ ऑनरेबली जो है वो को एग्जिस्ट कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास एक मौका आया और उस मौके को आपने अगर तो टाइम बाई के लिए इस्तेमाल किया है कि ठीक है इन दहशतगर्दों को रिलोकेट करेंगे, इनके कैंप्स को दाएं बाएं करेंगे, तो फिर तो ठीक है, आपने सबको चीट किया है। और अगर तो आप वाकई अमन की तलाश में हैं और कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं अफगानिस्तान का और इस खित्ते का, तो फिर तो इस मौके को मेरा ख्याल है किसी कीमत भी ज़ाया नहीं करना चाहिए था।
اب یہاں پہ میزبان بھی پریشان ہے، اب یہاں پہ دنیا جس نے ہمیں موقع دیا وہ بھی پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کے پاس بہت اچھا موقع ہے. ایک موقع انہوں نے دوحہ میں حاصل کیا، اسی طرح کا موقع ان کو ترکی اور دوحہ میں مل رہا ہے کہ وہ افغانستان کا فیوچر کی بات کریں. وہ یہ جو لاکھوں کروڑوں، دیکھیں آج بھی ورلڈ فوڈ پروگرام یہ کہتا ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے کو نہیں ہے افغانستان میں. تو اگر ورلڈ فوڈ پروگرام کو یہ پتا ہے تو کیا افغان طالبان کو نہیں پتا کہ ان کے لوگ کھانے کو نہیں ہے؟ تو کیوں وہ راستہ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو افغان عوام کے لیے مشکل ہے؟ وہ کیوں وہ راستہ چوز کر رہے ہیں جس سے وہاں پہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی؟ اب دیکھیں نا، اگر تو افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا راستہ نکلے تو راستے کا موقع تو ان کو دیا گیا تھا. اور اب دیکھیں 18 گھنٹے مذاکرات کرنا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. اس سے بڑا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میزبان بھی سیریس ہے، پاکستان بھی سیریس ہے. ابھی بھی کوششیں دیکھیں، امن کے لیے ہر وقت کوشش جاری رہنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سنجیدگی دکھائی جائے. بالکل قمر چیمہ صاحب، میزبان بھی سیریس ہیں، پاکستان کا وفد بھی سیریس ہے، طالبان رجیم کو اب سیریسنس کا، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. بہت شکریہ، آپ نے اربن نیوز کے لیے وقت نکالا. مزید خبریں اس بریک کے بعد ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. لاہور کے علاقے نشتر کالونی، گرین ٹاؤن، ہربنس پورہ اور رنگ روڈ پر سی سی ڈی اور ملزمان میں مبینہ مقابلے. یار محمد ہمیں اپڈیٹ کریں گے. جی یار محمد. بالکل جی، سی سی ڈی کے 4 مختلف مبینہ مقابلوں میں 6 ملزمان ہلاک ہو گئے ہیں. یہ پولیس مقابلے نشتر کالونی، گرین ٹاؤن، ہربنس پورہ اور رنگ روڈ کے قریب ہوئے ہیں. سی سی ڈی حکام کے مطابق جو ماڈل ٹاؤن میں اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے پولیس موجود تھی، جبکہ ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے پارٹی پر فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ سے 2 ساتھی ان کے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں. اسی طرح گرین ٹاؤن میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، جبکہ رنگ روڈ کے قریب شہریوں سے لوٹ مار کرنے والے ملزمان پر فائرنگ کی گئی ہے. وہاں پہ بھی جو ملزمان ہیں ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ایسی کہ 4 مختلف مقابلوں میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ یار. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس 339 ریکارڈ کیا گیا. فیصل آباد میں بھی فضا انتہائی مضر صحت ہے، جہاں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 692 تک پہنچ گئی. قصور 614، پتوکی 531، ملتان 479 اور شیخو پورہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 457 ریکارڈ کی گئی ہے. طبی ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے. غازہ میں لوگوں کو بموں سے مارنے کے بعد اب بھوک سے مارا جا رہا ہے. میری ذاتی رائے ہے وہاں امن کے قیام کے لیے اگر پاکستانی افواج کو موقع ملتا ہے تو یہ سعادت کی بات ہوگی. مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11th آور میں گفتگو. اینکر پرسن وسیم بادامی کے سوال پر رانا ثناء اللہ نے کہا، غازہ میں امن فورس میں پاکستانی فوج کی شمولیت کے حوالے سے کسی پیشکش سے لا علم ہوں. پاکستان ان 8 ممالک میں شامل ہے جنہوں نے یقینی بنایا غازہ میں امن اور امن فورس کے پاس انتظام ہونا چاہیے. اسرائیل نے غزہ میں آرم فورسز میں ترک فوج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے جو ممالک غزہ میں اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں انہیں اسرائیل کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. اردوان کی قیادت میں ترکی نے اسرائیل کے خلاف دشمنی کا رویہ رکھا، اس لیے ہمارے لیے یہ قابل قبول نہیں کہ ہم ان کی مسلح افواج کو غزہ کی پٹی میں داخل ہونے دیں. اپنے امریکی دوستوں کو بھی یہ بات صاف طور پر بتا دی ہے. جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل کے سر پر جنگ کا جنون سوار ہے. اسرائیلی فورسز جنگ بندی معاہدے کے مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہیں. غازہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور گولہ باری کی. خان یونس کے قریب اسرائیل ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی آرمی چیف نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے خلاف جنگ ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا. اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر کا کہنا ہے غازہ میں حماس کے خلاف جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک آخری یرغمال کی لاش واپس نہیں لائی جاتی. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہمیں اپنے مشن کو مکمل کرنا ہے.
واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو یا پھر انسٹا، اردو زبان میں۔ پاکستانی صارفین کے لیے میٹا اے آئی نے خصوصی فیچر متعارف کرا دیا۔ پاکستانی صارفین اب میٹا اے آئی سے انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات چیت کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ خواجہ نے پیش رفت کو اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں ARY نیوز۔